Good morning, class. Hope you're all having a great time. This is Achal, your educator and friend, welcoming you all to Silverline Books by Turning Point Publishing House, and we are taking up My Green World for class 3. Okay, so we are on to unit number 2, that is about our body. हम इस unit में अपनी body के बारे में पढ़ रहे हैं, and we have come to chapter number 4, where we learn how to take care of our body. हम अपनी body का कैसे ध्यान रख सकते हैं इस chapter में हम वो सीखेंगे. Clear? So children, you tell us, what do you do to keep yourself clean? आप अपने आप को साफ रखने के लिए क्या करते हैं? Do you take bath regularly? Do you brush twice a day or not? Right? बाहर से आते हैं तो अपने hands को clean करते हैं या नहीं? So remember some of the things you do. कुछ चीजें आप हमें बताएं जो आप करते हैं to keep your body clean. Now let us find out more about the facts about cleaning our body in this chapter. So first let's learn about what are germs. Germs क्या होते हैं? Suman is a little girl. She studies in class 3. She likes to study and to play. She takes care of herself. Suman एक छोटी सी बच्ची है, just like you all. She is studying in class 3 and उसको पढ़ना बहुत पसंद है और उसे खेलना भी बहुत पसंद है. So she takes care of herself. Let's see what she does. She keeps her body clean. वो अपनी body को एकदम clean करते हैं. Do you know why she does that? It is because her teacher said that the germs grow in dirt, so we should be clean. क्यों अपनी body को clean रखती है? क्योंकि उसकी टीचर ने उसे बताया कि जो डर्ट है, डस्ट है, उसमें जर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी पर ग्रो करते हैं और हमें साफ सुथरा रहना चाहिए इसलिए जिससे कि वो जर्म्स हमारी बॉडी पर ग्रो ना करें. सो शी लिसन टू हर टीचर एंड शी स्टार्टेड कीपिंग हर बॉडी क्लीन. सो चिल्ड्रन, व्हाट आर जर्म्स? जर्म्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स. बहुत छोटे छोटे होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते. राइट? Germs are very small living things that live and grow in dirt. ये गंदगी में पैदा होते हैं. Right? They are very very small living things. ये living things होती हैं. Right? और ये गंदगी में पैदा होते हैं. Germs are very small things that live and grow in the dirt. They are so tiny that you cannot see them. वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमारे को ऐसे दिखते ही नहीं है. We cannot see them. They are invisible to our eyes, but they are dangerous. लेकिन वो दिखते नहीं हैं, but वो बहुत dangerous होते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं. They can make you very ill. They can cause an upset stomach, cold, cough, sore eyes, fever and many other illnesses. Right? उनकी वजह से आपका पेट खराब हो सकता है. पेट के पास कैसे जाएंगे germs? जब आप बाहर से खेल के आएंगे, डर्टी हैंड से आप कुछ खा लेंगे तो क्या होगा? द जर्म्स ऑन योर हैंड्स. जब आप बाहर गए, आपके हैंड्स ने कहीं ना कहीं डस्ट को पकड़ा होगा, डर्ट को पकड़ा होगा. राइट? एंड व्हेन यू ईट विद दैट हैंड विदाउट वॉशिंग इट, वो जर्म्स आपके खाने के साथ आपकी बॉडी में चले जाएंगे और आपके स्टमक में पेन करेंगे. राइट? हो सकता है कुछ जर्म्स से आपको कोल्ड हो जाए. राइट? आपको कफ हो सकता है, खांसी हो सकती है, सोर आईज, आपकी आईज में दर्द हो सकता है, रेडनेस आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, फीवर हो सकता है एंड मेनी सच इलनेसेस आपको जर्म्स की वजह से हो सकती हैं. राइट? सो जर्म्स लिव एंड ग्रो इन वार्म, मॉइस्ट एंड डर्टी प्लेसेस. तो ये जो जर्म्स हैं ये कहाँ रहते हैं, कहाँ बढ़ते हैं? लिव इन मॉइस्ट यानी वार्म, थोड़ी थोड़ी जो गर्मी वाली जगह होती है, गीली जगहों पे, एंड डर्टी, गंदी जगहों पर ये जो जर्म्स हैं ये रहते हैं और ग्रो भी करते हैं. राइट? Therefore, keeping your body clean helps you to stay away from germs and to stay healthy. इसलिए ये ये जो अगर आप अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं तो इससे क्या होता है? वो जर्म्स जो हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं और वो आपको बीमार नहीं करते, परेशान नहीं करते. So what are germs, children? Germs are very small living things that live and grow in dirt
and they are so tiny that you cannot see them, but they can make you very ill. They are very dangerous, right? So you must keep your body clean. Now let's see how you can do that, how you can keep your body clean. So germs, they stick to your body along with dirt. जब आपके हाथों में, कपड़ों पर मिट्टी लग जाती है खेलते हुए या बाहर जाते हैं जब आप, राइट, तो क्या होता है, ये जो जर्म्स होते हैं डर्ट में, वो आपकी बॉडी से चिपक जाते हैं विद द डर्ट. यू शुड बेथ डेली विद सोप एंड वाटर. इसीलिए आपको रोज सोप और वाटर से नहाना चाहिए टू क्लीन योर बॉडी ऑफ दीज जर्म्स. दिस विल वॉश अवे द डर्ट एंड जर्म्स. जब आप सोप और वाटर से नहाएंगे तो ये जर्म्स सोप और पानी के साथ धुल जाएंगे. While bathing, you must take care to clean your eyes. और जब आप नहाते हैं तो आपको अपनी आईज को भी क्लीन करना चाहिए, राइट? अपनी नोज को क्लीन करना चाहिए, बिहाइंड द ईयर्स क्लीन करना चाहिए. सो ऑल दीज पार्ट्स आपको बहुत ध्यान से क्लीन करने चाहिए. अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा? Germs will grow in these places, right? Make sure no water goes inside your ears. और जब आप नहाते हैं तो ध्यान रखें कि पानी जो है आपके ईयर्स में ना जाए, राइट? इट कैन हर्ट यू. आफ्टर अ बाथ, वाइप योरसेल्फ ड्राई विद अ क्लीन टावल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहाने के बाद आपको अपनी बॉडी को टावल से अच्छे से सुखा लेना चाहिए. व्हाई? क्योंकि जो जर्म्स हैं ये गीली जगहों पर ग्रो करते हैं. हमने पढ़ा ना, दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस. सो वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन एंड ड्राई. नहाने के बाद उसे सुखाना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ हाउ कैन यू कीप योर हेयर क्लीन? बालों के लिए क्या करते हैं हम? यू मस्ट ऑल्सो कीप योर हेयर क्लीन. वॉश योर हेयर रेगुलरली विद सोप और शैम्पू. अपने बालों को भी शैम्पू या सोप से क्लीन करना चाहिए रेगुलरली. इफ नॉट डेली, then at least after 2 or 3 days you must wash your hair with soap or shampoo, right? इससे क्या होगा? जो जर्म्स आपके डर्ट और जर्म्स आपके बालों में चिपके हुए हैं वो भी वॉश ऑफ हो जाएंगे, राइट? जर्म्स स्टिक टू योर हैंड्स एंड अंडर योर फिंगर नेल्स. ये जो जर्म्स हैं आपके हैंड्स पे, अगर आपके फिंगर नेल्स बड़े हैं तो उसके अंदर भी कभी आप देखेंगे एकदम ब्लैक डर्ट जमा हो जाती है, राइट? देयर आर ऑल जर्म्स जो हमारे फिंगर नेल्स के अंदर इकट्ठे हो गए हैं. यू शुड वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग. इसीलिए कुछ भी खाने से पहले आपको अपने हैंड्स को अच्छे से सोप और वाटर से क्लीन करना चाहिए. यू शुड क्लीन योर नेल्स ऑल्सो. वॉश करते टाइम अपने नेल्स को भी स्क्रैप करें, उनको क्लीन करें. यू मस्ट ऑल्सो कीप योर नेल्स क्लीन एंड शॉर्ट. इसीलिए आपको अपने नेल्स को एकदम साफ और शॉर्ट रखना चाहिए. अगर लॉन्ग नेल्स होंगे तो उन फिंगर नेल्स के नीचे बहुत सारे जर्म्स ग्रो करने लगेंगे. सो यू शुड कीप योर नेल्स शॉर्ट. क्लियर? नाउ comb your hair twice a day. comb करने से क्या होता है? It will remove dirt from your hair and you will look neat. comb करने से हमारे जो बालों में dirt जमा होती है वो भी निकल जाती है और आप neat and tidy लगते हैं. When you eat, small bits of food get stuck to your teeth. If these are not removed, germs start growing on them. So बच्चों, जब हम खाना खाते हैं, राइट, तो क्या होता है? जो खाने के छोटे छोटे पीसेस हैं वो हमारे टीथ में चिपक जाते हैं, राइट? Small bits of food get stuck to your teeth and if these are not removed, अगर आप प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं या अपने माउथ को रिंस नहीं करते हैं तो क्या होता है? जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन देम. वो जो खाना फंसा होता है उनमें जर्म्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. दे डैमेज द टीथ. और ये जर्म्स क्या करते हैं? आपके टीथ को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं. स्मॉल होल्स कॉल्ड कैविटीज फॉर्म इन दी teeth. So what these germs do? They create small holes in your teeth which are known as cavities, right? Cavities हो जाती हैं आपके teeth में. When the cavities become bigger, the teeth start hurting. और जब ये छोटी छोटी cavities बड़ी हो जाती हैं, right, तब आपके teeth में पेन होना शुरू हो जाता है, right? So it is very important to keep your teeth clean. जब भी आप कुछ खाना खाते हैं, try to rinse your mouth. अपना माउथ रिंस करें and
you must brush your teeth twice a day. Before sleeping is very important, क्योंकि दिन भर में आपने जो खाना खाया है वो कहीं ना कहीं टीथ में चिपका होगा. अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो ओवरनाइट सारे के सारे जर्म्स बाहर आके आपके टीथ में आपको डैमेज करेंगे, उसमें छोटे छोटे होल्स करेंगे जिन्हें हम कैविटी कहते हैं. राइट? सो यू मस्ट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. ब्रश योर टीथ every morning and night to remove the bits of food stuck in your teeth. Rinse your mouth thoroughly after you eat. Right? कुछ भी खाने के बाद आप अपने माउथ को अच्छे से रिंस करें एंड सुबह और रात को सोने से पहले जरूर ब्रश करें. Understood everyone? Now you must go to the toilet every day. आपको रोज टॉयलेट जाना चाहिए. Dangerous germs live in the waste that comes out of the body, right? टॉयलेट जाकर you should remove your waste. जो आपकी बॉडी के यूरिन और पूप के फॉर्म में जो वेस्ट निकलते हैं, that is very important. Every morning you should get rid of the waste in your body. जो वेस्ट है इसमें बहुत सारे germs होते हैं. You must wash your hands well with soap and water after using the toilet. और टॉयलेट से आने के बाद आपको अपने हैंड्स को अच्छे से सोप और वाटर से क्लीन करना चाहिए. राइट? यू मस्ट ऑल्सो कीप द टॉयलेट क्लीन. आपके टॉयलेट को भी एकदम क्लीन रखें जिससे कि उसमें जर्म्स ना ग्रो करें. राइट? नाउ these are some things that you must do to keep your body healthy. राइट? अब अपनी बॉडी को हमने क्लीन कैसे रखते हैं वो देख लिया, सारे बॉडी पार्ट्स का पढ़ लिया. नाउ वी विल सी हाउ टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. So first thing is exercise daily, as it will make your muscles strong and keep you fit. So exercising, children, is the most important thing to keep your body healthy and fit. Exercise करने से क्या होता है? It will make your muscles strong. हमारे muscles strong होते हैं and हम fit रहते हैं. Then next is go out in the open and play. Breathe in fresh air. बाहर जाकर खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? इससे आप फ्रेश एयर ब्रीद इन करते हैं और आप हेल्दी रहते हैं. नेक्स्ट इज अवॉइड जंक फूड एंड ईट अ वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड सच एज फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड दाल्स. राइट? हमें क्या खाना चाहिए? हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए. हमें हेल्दी होम कुक्ड फूड खाना चाहिए. बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जैसे बर्गर्स, पिज्जाज, नूडल्स. They are no good. उनका कोई फायदा नहीं है. They are not healthy. In fact, they will make you sick if you overeat on these junk food. आपको क्या खाना चाहिए? घर का पका साफ सुथरा खाना खाना चाहिए जिसमें फ्रेश फ्रूट्स भी इंक्लूड होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, एंड यू शुड इंक्लूड दाल्स ऑल्सो इन योर मील. राइट? सो हेल्दी फूड खाएं टू रिमेन हेल्दी. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर. बहुत सारा साफ पानी पिए. यू मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 glasses of water. That is the minimum. Right? So that आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट है, टॉक्सिन्स हैं, वो सब पानी के साथ बाहर निकल जाए थ्रू योर यूरिन. नाउ वियर क्लीन क्लोथ्स. साफ सुथरे कपड़े पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज क्या होगा? गंदे कपड़ों में जर्म्स ग्रो करेंगे एंड दे विल मेक यू इल. राइट? स्लीप अर्ली and wake up early. This should be the routine of your life, children. रात को जल्दी सोना चाहिए, देर से नहीं सोना चाहिए, और मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए. Do not watch too much television or play computer games for too long. It can harm your eyes. बहुत देर तक आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, कंप्यूटर पे गेम्स नहीं खेलने चाहिए, मोबाइल फोन्स बहुत देर तक यूज नहीं करने चाहिए. Right? You should limit your screen time. Otherwise, your eyes will get damaged. Always walk and sit straight. आपकी बॉडी का पोस्चर सही होना चाहिए. राइट? एकदम सीधे चले और बैठे. यू शुड नॉट droop your shoulders. अपनी बैक को बेंड नहीं करें. राइट? यू शुड मेंटेन अ गुड पोस्चर. यू शुड वॉक एंड सिट straight always. Right? So understood, children? I hope इस बॉडी की हम कैसे केयर कर सकते हैं of the different body parts is clear to you now. Right. Now let's begin with our exercise. A part. Use the words given below to fill in the blanks. So let's fill these blanks. We're not seeing any words here. First one is
I must breathe fresh. हमें क्या breathe in करनी चाहिए? Fresh air. Number 2, I must comb my dash twice a day. हमें क्या comb करना चाहिए? Yes, our hair. Number 3, I must wear clean clothes. हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए. Number 4, to make my muscles strong, I must dash every day. अपने muscles को strong करने के लिए हमें रोज exercise करनी चाहिए. Very good. Must exercise every day. Number 5, I must dash every day. रोज क्या करना चाहिए? I must go to toilet every day. Now, number 6, I must eat healthy food. हमें healthy खाना खाना चाहिए, not the junk food. Number 7, I must drink plenty of dash every day. क्या पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए खूब सारा. Plenty of water. Number 8, I must brush my dash every morning and night. सुबह और शाम सोने से पहले हमें अपने टीथ ब्रश करने चाहिए. Right? Let's come to the B part. Choose the correct option and take the correct one. Germs make you sick. Germs से हम बीमार पड़ते हैं. Right? Number 2, germs cause small holes in the teeth called, small holes को क्या बोलते हैं? Cavities. Clear? Number 3, you must brush your teeth twice a day. Number 4, we can eat junk food. When should we eat junk food? Only sometimes. कभी कभी खाना चाहिए, रोज नहीं खाना चाहिए. Right? Now let's come to the C part. Answer the following questions. Number 1, how can you keep germs away? Germs को कैसे दूर रख सकते हैं? We can keep the germs away by keeping our body clean, right? Number 2, what happens when germs attack the teeth? Germs attack करते हैं तो क्या होता है? These germs, they make holes in our teeth and these holes are known as cavities. These cavities damage our teeth, right? Now, write down 3 things we should do to keep our body healthy. हमें अपनी body को healthy रखने के लिए क्या करना चाहिए? We must drink plenty of water. We must exercise daily. And what else? We should eat healthy food. And also, I told you so many other pointers. You can use any of them to write here, right? Now, number 4 says, what are germs? So, germs are very tiny living things that live and grow in dirt, right? Number 5, how can we keep our bodies clean? हम अपनी bodies को कैसे clean रख सकते हैं? By bathing daily, by brushing our teeth twice a day, by washing our hands before and after meals, right? इन सब की मदद से हम अपनी body को clean रख सकते हैं. Why should we wash our hands before we eat? Because the germs, they stick to our hands and under nails. So we should wash our hands with soap and water before eating anything to avoid getting ill because of these germs that were stuck to our hands, right? Now we have this fun time activity. First activity देखते हैं. Form groups of 5 students each. 5 students के groups बनाएंगे. Each group should choose a body part and bring things used to take care of it, right? हर group एक body part choose करेगा और वो क्या लेकर आएगा? उस body part को clean रखने के लिए क्या-क्या चीजें use करते हैं. For example, the group which gets teeth. अगर किसी ने teeth को choose किया है तो वो क्या-क्या लेकर आएंगे? Toothbrush, toothpaste, dental floss, mouthwash, right? All these things that are used to keep your
माउथ क्लीन, टू कीप योर टीथ क्लीन, राइट? आप वो सब चीजें लेकर आएंगे। एंड explain to the rest of the class how each item is used to keep the body part clean. और उन सारे जो आप सामान लेकर आए हैं कैसे उनको यूज करते हैं to keep that body part clean. You will explain that to the rest of the class. Other body parts you could choose are skin. आप skin choose कर सकते हैं, skin को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, clean रख सकते हैं. Eyes, ears, legs and feet, nails and hair, right? Any of these body parts you can choose and bring those things that are needed to keep them clean, right? Now, second activity says collect wrappers of different kinds of soaps, toothpaste, hair oils, shampoo, cream, health drinks. Look at the wrappers for their cost, date of manufacture and expiry, right? उन wrappers को collect करके किसी भी ये सब चीजें हैं या किसी और चीज का रैपर आप लाएंगे स्कूल में और क्या चेक करेंगे? यू विल चेक फॉर देयर कॉस्ट कि वो चीज कितने की आती है, राइट? द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर कि वो कब मैन्युफैक्चर हुई और वो कब एक्सपायर होने वाली है, उस पर डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखी होती है जिसके बाद उस चीज को हमें यूज नहीं करना चाहिए, राइट? रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स और जो जो चीजें आप फाइंड करते हैं अबाउट ऑल दोज रैपर्स उन्हें आप रिकॉर्ड करेंगे, उन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे. We should not use things that are older than the expiry date mentioned on the wrapper. Wrapper पे जो expiry date लिखी है उसके बाद हमें वो चीज यूज नहीं करनी चाहिए. The next activity is we should take good care of ourselves. To do this, it is important to keep ourselves and our surroundings clean. अपने आप को यह ध्यान रखने के लिए आपको अपने आसपास सफाई रखनी होगी. You know, eat healthy food at the right time. सही टाइम पे अच्छा खाना खाना होगा, हेल्दी खाना खाना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी रेगुलरली एंड रेस्ट एंड स्लीप इनफ एंड ऑन टाइम. और आपकी बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत है, सो यू मस्ट टेक गुड स्लीप. टाइम पर सोएं और टाइम पर उठें. वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टेइंग हेल्दी. मेक अ पोस्टर ऑन दिस टॉपिक दैट शोज ऑल दी हेल्दी हैबिट्स. ऐसा ही आप एक पोस्टर बनाएंगे जिसमें यू विल राइट डाउन ऑल दी हैबिट्स दैट कीप यू healthy and you will display this in your class, right? So this way we come to an end of this chapter, children. I hope by now you know how to take care of the different parts of the body and why it is so important so that germs do not grow on your body and make you ill, right? So children, I will see you with the next chapter in my next video. Till then, children, you all stay blessed and stay healthy. Bye kids, have a great time.